Hello, my dear students. Welcome back again in your computer class. Here in this computer class, my dear students, we are going to cover chapter number 9 of your computer book, and the name of the chapter is Artificial Intelligence. So ये हमारा चैप्टर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या डिस्कस करेंगे. ओके, होप सो आपको पहले वाले सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर होते गए हैं, समझ में आ रहे हैं. वंडरफुल. चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम किसको कहते हैं? आजकल के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई है. किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दिया है इन्होंने. क्या होती है ये, कैसे मशीन्स ह्यूमन बीइंग जैसे सोच पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से हमारा आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सब्जेक्ट स्कूल्स में हो गया है. एआई के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. यस, सो आइए जानते हैं एआई के बारे में. The term artificial intelligence refers to the process of replicating human intelligence in machines, particularly computer systems, or the capacity of a digital computer or computer-controlled robots to carry out tasks often associated with intelligence individuals. ऐसे काम करना जहाँ इंटेलिजेंस का यूज हो, उसको अगर रोबोट्स कर पा रहे, मशीन्स कर पा रही हैं, वो है हमारी एआई. कि आर्टिफिशियली कैसे मशीन्स रोबोट्स को हमने इंटेलिजेंट बना दिया है कि वो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स जो काम कर पाते इजीली वो कर पा रहे हैं. So cognitive skills such as learning concepts, developments, comprehensions and applications of logics and reasons, as well as ability to identify patterns, plan, invent, solve problems, make decisions, remember informations, communications, everything is possible, or just machines can do it just because of the AI. सोच पाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी, आपसे कम्युनिकेट कर पाएगी, इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएगी, सब कुछ. So in order to develop technology that enables computers and machines to operate intelligently, artificial intelligence aims to enhance computer abilities that are connected to the human comprehension, such as thinking, learning and problem solving, because AI empowering people to become better versions of themselves and embrace ongoing stages और challenges जो उनको फेस करने पड़ते हैं. अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स हैं. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. तो सबसे पहले ANI. नैरो इंटेलिजेंस में क्या होगा, ऐसे टास्क करेंगे जो छोटे मोटे टास्क है. सो द एबिलिटी ऑफ AI सिस्टम्स टू परफॉर्म अ सिंगल असाइंड टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. एक ही काम को वो कर पा रही है. These systems specialize in one area and solve one problem at a given point of time. जैसे Siri, Alexa, ये नैरो इंटेलिजेंस में आ जाती है. एक ही काम करते हैं, वॉइस असिस्टेंस का, दैट्स इट. उसके अलावा कोई काम नहीं करती. जनरल इंटेलिजेंस में कौन सी चीजें आती हैं? सो AGI कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ AI systems to learn, perceive, understand and function completely like humans. ये ह्यूमन जैसे completely करती है काम. AGI is the still a theoretical concept. ये रहता है. These systems are hard to develop because ये systems अभी hard to develop है because replication of human brain is theoretically possible but practically it is not possible. General intelligence में जनरल काम जो human beings कर पाते, देखिए human beings कभी कभी जो काम कर पाते हैं उनकी उसके पीछे कोई इमोशनल चीज अटैच हो सकती है, फिजिकल बैरियर कुछ हो सकता है ना. तो बिल्कुल हूबहूब ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करना थोड़ा और शायद मुश्किल हो सकता है ना. सो ये वाली जो सिस्टम बनाना अभी भी पूरी की तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाया है. फिर हमारे पास आते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में क्या होता है. सो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ AI systems that could perform any task better than the human with cognitive behavior. ये ह्यूमन से भी अच्छा काम करके दिखाएगा आपको. With ASI, a system would be self-aware that it would surpass the level of cognition performance found in the humans. This would include and decisions making, taking rational decisions and even building emotional relationship establish करना. ये सारी चीजें कि relationship establish कर रहा है, rational decision ले पा रहा है ना, और किस तरीके से build कर पा रही है चीजों को जो human being करते हैं, है ना, emotionally आपके लिए फेयर डिसीजन लेना, ठीक है, बायसनेस नहीं होना, वो सब चीजें मशीन्स में देने का काम. सो ASI इज करेंटली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन. अभी ये हाइपोथेटिकल ही है क्योंकि अभी तक हम जनरल पे नहीं पहुंच पाए, तो ये तो सबसे सुपीरियर सुपर पावर वाली हो गई.
सो ASI इज करेंटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज डिपिक्टेड इन मूवीज एंड सीरीज में ही अभी तक दिखाया गया है. AI system would rapidly be able to improve their capabilities and advance into reals that will or that we might not even have dream of. ये अभी रील्स और व्हाट वी कैन कॉल आपके मूवीज में एंड सीरीज में ही दिखाया गया है, बट अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाए इस तरीके से करना. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हमारे पास कौन कौन से. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज वेरियस एप्लीकेशंस इन टुडेज सोसाइटीज. इट हैज बिकम अ इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद अ इफेक्टिव वे. बड़े इजी तरीके से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर देती है. द फील्ड्स वेयर AI कैन अप्लाइड एंड यूटिलाइज आर लिमिटलेस. आज के टाइम पे कहाँ AI अप्लाइड कर सकते हैं, लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है. ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बेनिफिट्स फ्रॉम यूज ऑफ AI एंड AI बेस्ड डिवाइसेस से हमें बेनिफिट मिलता है. सो AI जैसे कि अभी हेल्थ केयर सेक्टर्स में हम क्या करते हैं, आजकल हेल्थ केयर सेक्टर्स में AI कैसे काम, आजकल मशीन्स देख रहे हो सारे काम, इनफैक्ट द surgery is also done by AI or machines or robots. Okay, so healthcare industries are applying AI to makes a better and fast diagnostic human brains. AI can help doctor with diagnosing by detecting diseases and identify infections at a early stage. अर्ली स्टेज में कोई इन्फेक्शंस है वो सब है डिटेक्ट करने का काम करते हैं एंड आइडेंटिफाई इन्फेक्शियस एट अर्ली स्टेज एंड दस दे हेल्प टू बी अ गिव अ सुइटेबल ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में देने का काम करते हैं. और आपने देखा कोविड के टाइम पे अगर रोबोट्स ही होते, AI होते तो इतनी जान नहीं जाती हेल्थ केयर सेक्टर में, है ना. तो ये चीज़ है. ई कॉमर्स में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट AI का काम है. हम जितने भी आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो उस पर जो भी आपका सर्चेस होते हैं, आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हो वो AI पे स्टोर हो जाता है और मशीन्स फिर वो आपको हर जगह वो चीज़ दिखाएगी कि आपको ये परचेज करना है, डू यू लाइक दिस थिंग, है ना. आप यूट्यूब खोलो, आप Gmail खोलो, कुछ भी खोलो, वहाँ पे ये एड्स आने शुरू हो जाते हैं. सो AI इज प्रोवाइडिंग अ कम्पिटिटिव एज टू द ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए. कंपनीज लाइक Amazon एंड Flipkart यूज AI टेक्नोलॉजी टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स टू द यूजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री. आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री तो उन सबके पास है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे कोई भी ऐप हो, वो आपके अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस आपको दिखाएगा. उनको पता है आप किस रेंज का कौन सी चीज़ देखने में इंटरेस्ट करते हो, तो वैसी ही चीज़ आपको वहाँ पे शो किया जाएगा. फिर बैंकिंग सेक्टर में भी AI का बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल 24/7 बैंकिंग सर्विस हम देख कर पाते हैं. सो बैंक्स कैन यूज AI टू ट्रांसफॉर्म द कस्टमर एक्सपीरियंस बाय एनेबलिंग फ्रिक्शनलेस 24/7 कस्टमर इंटरेक्शन हो पाता है. AI पावर चैटबोट्स हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम AI से पूछ पाते हैं क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है ना. अब कोई हमें वो कस्टमर केयर और पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए. और रोबोटिक्स, कैसे आजकल रोबोट्स काम करने लग गए हैं. सो रोबोटिक्स इज अनदर फील्ड वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस आर कॉमनली यूज्ड. Robots powered by AI use real-time updates to sense obstacles in its path and pre-plan its journey instantly. बिल्कुल सही, पहले से ही रोबोट्स आपको ऑब्स्टिकल बता देंगे, आप पहले से ही वो चीज़ों को पता कर पाएंगे. उससे क्या है, इंजरी होने के चांसेस, डैमेज होने के चांसेस, डिस्ट्रक्शंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं. सो AI and ML, that means manual labor or artificial intelligence, are useful tools in helping organization implementing more efficient, unbiased and effective hiring होने का चांस होता है. अब AI है ना, ह्यूमंस भी होंगे इसमें, AI भी होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे चीज़ों को टैकल किया जाएगा. Through ML software, we can examine applications based on specific parameters. AI-driven systems can scan job candidates' profiles and resume to provide recruiters an understanding of the talented tools what they want to choose. Okay. फिर गेमिंग में कैसे आजकल AI यूज किया जा रहा है. सो अनदर सेक्टर्स वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन हैज फाउंड प्रोमिनेंस ऑन इट्स गेमिंग सेक्टर्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ AI is to games to generate responsive, adaptive or intelligent behavior primarily in non-players characteristics similar to humans like intelligence. यहाँ पे गेम्स आप सबको पता है, अलग अलग गेम्स AI के थ्रू आजकल खेल पा रहे हैं. ये तो सब चीज़ हम कर ही पाए, बैंकिंग कर पाए, गेम्स खेल पाए, वीडियोस देख पाए, ई कॉमर्स कर पाए. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से. सबसे पहले मशीन लर्निंग क्या होती है.
आप देखो यहाँ वेदर लिखते ही आपको ऑटोमेटिकली गूगल सर्च दिखा देगा, वेदर दिल्ली का देखना है, वेदर टुडे देखना है, वेदर टुमारो देखना है, वेदर ह्यूमिड देखना है, क्या देखना है, वेदर के बारे में 10 चीजें आपको ऑटोमेटिकली ऑटो मशीन्स आपको समझ जाएगा, आपके लिखने से पहले आपको वो वर्ड्स दिखा देता है। यही है, सो मशीन लर्निंग इज द upsurge of AI that allowed software's applications to become more accurate and predicting outcomes without being explicitly programs। आपको ऑटोमेटिकली वहां पे नाम और ऑटोमेटिकली नेम शो करने लग जाएगा। ये है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ ML which itself a subset of AI that imitates the working of human brain in processing data and creating patterns for making decisions। ये ह्यूमन ब्रेन का यूज किया जाएगा और उससे डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा। ये है डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ data science which includes statistics and predictive modeling। Deep learning issues or uses multi-layered structures of algorithm। यहाँ पे multi-layered चीजों को solve किया जाएगा। न्यूट्रल नेटवर्क में क्या होगा? न्यूट्रल नेटवर्क क्या है? एक सेट ऑफ algorithm है जिसमें डिजाइन किया जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को टैकल करने के लिए यूज किया जाएगा। अब AI लैब्स, हमारे पास कौन कौन से AI लैब्स हैं? सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वर्जन। ये क्या है? Facial recognition is a technology which based on computer visions. It is a technology the digital equipment captures images at high resolution। आपको पता है आजकल इमेजेस, डिजिटल इमेजेस ली जाती है ना, डिजिटली कहीं पे अटेंडेंस मार्क करनी है, आपकी फेस को देख के, आपकी फिंगरप्रिंट्स को देख के यहाँ पे किया जाता है। समझ रहे हो? सो देखिए सबसे पहले लिखा है माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वर्जन क्या है? AI services has been developed by Microsoft for the analysis of विजुअल डाटा जो हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्म में, इमेजनरी फॉर्म में, कैसे भी फॉर्म में आप इसमें क्लिक कर पाएंगे। स्टार्ट मेन्यू में गए, माइक्रोसॉफ्ट एज में गए, वहां पे आपने कोई भी इमेजेस को कैसे भी, कोई भी इमेज को भी डाल दिया, उसकी इमेजेस पूरा का पूरा देखो, इमेज डालते आपको सारी चीजें उसके बारे में आ गई। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में कैसे भी अपनी चीजों को, टेक्स्ट को आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। ठीक है, इमेज डाल के देखो इन्होंने उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाली, तो ये AI ही कर पाता है। नॉर्मली इट इज नॉट हैपन बाय दैट। ओके, ये देखो इमेज डाली, ये इमेज डाली, रिजल्ट इसको तुरंत दिखा दिया यहाँ पे वर्जन में। ठीक है, जैसे आजकल हमारा वो है गूगल्स पे भी है स्कैन और इमेज का ऑप्शन आता है, स्कैन के बाद इमेज आता है, टेक्स्ट भी आता है और वॉइस भी आता है। वॉइस से भी आप चीजों को सर्च कर सकते हो, और जहाँ इमेज बना है तो वहाँ इमेज पे क्लिक करोगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट की आपको समझना है कि ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ये फ्रूट को क्या कहते हैं, वेजिटेबल को क्या कहते हैं, उसकी इमेज को आप फोटो क्लिक करेंगे, वो इमेज आपकी गूगल पे सीधा आ जाएगी और फिर तुरंत आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको तुरंत वो बता देगा ये चीज ये है, इसका नाम ये है, इसको ये कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये AI है और AI इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आज के सिस्टम में। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी हो जाती है यहाँ पे फिनिश। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई, क्लियर हुई। वंडरफुल। तो ये क्लास हमारी फिनिश होती है। मिलेंगे अब आपकी नेक्स्ट क्लासेस में विद द नेक्स्ट चैप्टर्स, विद द नेक्स्ट बुक। टिल देन बाय बाय।